Thursday, India witnessed a continued surge in COVID-19 cases. It recorded 760 new infections in the last 24 hours. मैं बहुत डरती थी कि शायद कोविड से हम लोग भी अफेक्टेड हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हम लोग ने पूरा फुल अपना मेहनत से पेशेंट को हम लोग मैनेज किए। 12 आवर्स हमें कोविड में ड्यूटी करना पड़ता था, पूरा पीपी किट डाल के। हम लोग वहाँ से पानी भी नहीं पी सकते थे। जैसे पेशेंट होम क्वारंटाइन हुए थे, उन पेशेंटों का घर घर जाके चेकअप करना था और ट्रीटमेंट देना था उन लोगों को। कोविड के टाइम में पापा का डेथ हो गया, शायद मेरे वजह से क्रॉस इन्फेक्शन हो गया था, तो लेकिन तभी भी हम लोगों ने ड्यूटी करना नहीं छोड़ा। During COVID-19, when whole country was facing lot of challenges, our scholars, our nursing scholars were working day and night to support this COVID affected people. Not even my single scholar was at home, and they were working day and night to support these people. So we are very proud of our nursing scholarship program, in which SILF is creating an army of nurses. Sasakawa India Leprosy Foundation started nursing scholarship when there was a lot of demand from the colonies. Because the youths and the children, they have seen their parents and their family members suffering from ulcers. They are not getting proper medicine, not getting proper treatment. So they're very much interested to take care of their family members, and their interest in nursing has grown from the childhood. So after seeing the demand, we have started this nursing scholarship. The eligibility criteria is any candidate who is residing in leprosy colony, whose parents, either mother, father or the applicant is leprosy affected or leprosy cured, can apply for the scholarship program. Yesterday I took the class repeated level, right? So what is that? Because Paulina was our postgraduate student, and after completing her studies, she has joined us as a faculty. but here it is not getting as a normal because of that. And I find her as a very enthusiastic person who's very communicative, hardworking, and she is willing to learn. And what I admire in her is her empathetic attitude towards the students, trying to solve their problems, listening to them, and she is a good mentor. I completed my MSc from Yenapoya Nursing College. After finishing my MSc, I passed with distinction and I got the job proposal here. Now this job is very benefit for me because I'm helping my brother study and I'm also helping my family members also. तो सबका अभी देखभाल पौलीना ही करती है, क्योंकि हम लोग का चैरिटी में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। हम लोग का बहुत कम पैसा मिलता है, तो अभी हर चीज़ का घर का हेल्प पौलीना ही करती है। वो अपने भाई को भी पढ़ा रही है, अपना भतीजी लोग को भी थोड़ा देखभाल कर रही है। अभी हम लोग का घर बना नहीं है, उसमें भी उसी का ये कर रही है, थोड़ा थोड़ा करके। मेरे सिस्टर ने मेरे को एक मार्ग दिखाया कि भैया आप कम से कम हायर पोस्ट में नहीं मेडिकल फील्ड में कर सकते हो, कम से कम जीएनएम कर लो। वो पैसा जमा की कि भैया इस पैसे को मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसी पैसे से आप जीएनएम करना। मेरा बहन का रोल अहम है इसमें, क्योंकि उसने मेरे को एक नया जीवन दिया है, एक आशा दिखाया है। This is very happy moment for me because I have seen financial issue because my parents, they belong to leprosy background. Now how much I'm getting, I can help my family. So I feel it's a very proud moment for me. कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें ना वो समझ सके न हम, ला 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 ला।
मैं लेप्रोसी परिवार से नहीं हूँ और मैं इन चीज़ों पे विश्वास रखता ही नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, और ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए। मैं लगभग 4 साल की थी तब से मुझे लेप्रोसी हुआ था। मेरे घर में केवल मेरी माँ ही थी उस टाइम पे। मेरे पिताजी भी गुजर गए थे, मैंने मेरे पिताजी को नहीं देखा। उसके बाद में मुझे लेप्रोसी हुआ तो मेरी मम्मी तो केयर कर रही थी, लेकिन जो गांव में समाज वाले हैं वो छुआछूत कर रहे थे। इस वजह से मेरी माँ ने मुझे दूसरे लेप्रोसी कॉलोनी में छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे लेप्रोसी कॉलोनी में एक सिस्टर रहती थी, वो मान लो अनाथ आश्रम चलाती थी, तो उन्होंने मुझे संभाला और वहीं से मैंने 12th की हाई सेकेंडरी की स्कूल पास की। उसके बाद मुझे सासाकावा लेप्रोसी फाउंडेशन स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग किया 2017 में। नर्सिंग की प्रैक्टिस करी प्राइवेट हॉस्पिटल में इंदौर से। उसके बाद कंपटीशन के एग्ज़ाम देते रहे तो उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा, तो सीएचओ की पोस्ट फिर ज्वाइन किया मैंने 2020 में। सन 2016 में मैं जापान गई थी, ग्लोबल अपील था जिसके लिए मुझे वहाँ बुलाया गया था और मैं वहाँ पे प्रेजेंट हुई थी। वहाँ से मैं सासाकावा जी से मिली थी। बापाଙ୍କ ना अजय कुमार साहू से लेप्रोसी अफेक्टेड थे। वर्तमान से मेरे पापा का नाम अजय कुमार साहू है, वो लेप्रोसी अफेक्टेड थे और अभी लेप्रोसी हेल्थ वर्कर के रूप में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर धर्मशाला जाजपुर में काम कर रहे हैं। मेरी बड़ी बहन जब बीएससी नर्सिंग कर रही थी तब मैंने देखा था वो कैसे पेशेंट्स का केयर कर रही थी और उसी वजह से मुझे मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट आया। मैं भी चाहती थी पेशेंट्स का सेवा कर सकूं, इमरजेंसी के टाइम पे उनकी मदद कर सकूं, चाहती थी कि समाज में कुछ सेवा कर पाऊं। उसी वजह से मैंने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई की। अभी मैं पूरी की श्री जगन्नाथ जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर हूँ। नर्सिंग ट्यूटर होके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। खुद भी सीख रही हूँ और साथ साथ बच्चों को भी सिखा रही हूँ और मैं फ्यूचर नर्सेस को रेडी कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है सबको पढ़ाने में। So far we have given scholarship to 194 youths from different leprosy colonies across India. And this is a scholarship, it ranges between 2-year to 4-year scholarship program, which covers BSc Nursing as well as Nursing GNM. जब मैं 12th में थी तो मुझे तो कुछ करना था, मतलब अपने पैर में खड़े होना था, इंडिपेंडेंट होना था। तो मुझे बनना था पायलट, लेकिन ना मेरे पास नॉलेज था और ना सोर्स था, तो फिर मैंने नर्सिंग को चूज़ किया। अभी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ एम्स रायपुर में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट में सीसीयू डिपार्टमेंट जो एनेस्थेसिया के अंदर आता है उसमें मैं पोस्टेड हूँ। हम लोग टोटल 4 भाई बहन हैं, 3 बहन और 1 भाई। पूजा को मैं अभी फार्मेसिस्ट कराऊंगी अपने पैसे से। उनके बाद मेरी बहन पूनम है, वो अभी जीएनएम 3rd ईयर में है, जिनका पूरा पढ़ाई का खर्चा मैं उठाती हूँ श्रेयास कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। उसके बाद मेरा भाई है सोहन साहू, अभी वो बीकॉम 3rd ईयर में है, उनका भी मैंने पूरा खर्चा मैं ही अपने पैसे से करती हूँ। अभी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन सबमिट करना है। इसमें एक अच्छा बात ये हुई है कि बच्चों डायरेक्ट खुद ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफिस में खुद फ़ोन कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है खुद बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है। और इसमें से एक अच्छी बात ये हुई है, जो जहाँ पर भी करप्शन का जो छोटा मोटा बात उठ रही थी तो वो भी ख़त्म हुआ है। कोई लीडर को ऐसा नहीं है कि जब तक वो उसके ऊपर साइन नहीं करेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ऐसा भी कुछ बात नहीं है। और आपका बैच में भी डायरेक्ट है? चलो ठीक है, तो ये 2 साल का है या 2 साल का? अच्छा। Okay. So we have So as I am one of the interview member of the Sasakawa India Leprosy Foundation, and I found
to that the students from so much poor background with leprosy and all, they are so much enthusiastic to learn. They are just waiting for the opportunity, and they just want to grab that opportunity to learn. When the students, when they are in 4th year, we are conducting campus interview. So Asian Heart Foundation Mumbai, they are conducting the campus interview, as well as Apollo Hospital, they are conducting the campus interview, and based on their performance, they are getting a job opportunity in Apollo as well as in Asian Heart Institute. All over we have 12 Apollo units throughout India and abroad. So they are getting opportunity to work not only in India but also abroad in London also. And that's how they're able to support their families, because when they start earning, it's a earning for the family as well. So one child gets the scholarship and the whole family is being empowered. कल मुझे सैलरी मिली 10,900। मैं बहुत खुश होके माँ को फ़ोन करके बोली कि इस बार रोजो पे पापा, माँ, ग्रैंडमदर को कपड़े खरीद के दूंगी, और बहुत खुशी हो रही है कि खुद के कमाए हुए पैसों से कपड़े खरीद के दूंगी। और माँ को बता रही थी कि अगले सैलरी में सभी को पूरी दर्शन में लेके जाऊंगी। কিন্তু যদি আমার এই ফর্মুলাটা যদি কারো মুখস্থ থাকে তাহলে সে চট করে এই জিনিসটা। After school learning centers play a great role in grooming the students there. We had 11 after school learning centers in different districts in India, and currently we have another, the 12th edition has started in Tirupati, recently in Andhra Pradesh. আজকে তোমাদের যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আমি একটা সূত্র বলবো। বিগত 5 বছর ধরে আমি অ্যাজ আ এসএলসি টিচার, पिछले 5 साल से मैं SILF में ASLC टीचर हूँ, और ये एक बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचरस वक्त रहा है मेरे लिए, क्योंकि आज भी बहुत लोगों के मन में लेप्रेसी को लेके काफ़ी सारा स्टिग्मा है। जब मैं स्कूल में थी तो लोगों को लगता था कि अगर कोई कल्याणपुर या गौरीपुर से आता है तो वो ज़रूर लेप्रेसी अफेक्टेड है, पर जब मैं कॉलेज जाना शुरू की तब मैंने देखा कि धीरे धीरे ये सोच काफ़ी बदल रहा था। मैं कहाँ से आती हूँ उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी आइडेंटिटी वही थी जो मैंने बनाया था अपने पढ़ाई के जरिए। हमारे आफ्टर स्कूल लर्निंग सेंटर से इस साल 2 लड़कियों को सासाकावा इंडिया लेप्रेसी फाउंडेशन का नर्सिंग स्कॉलरशिप मिला है, और कुल मिलाकर 8 स्कॉलर्स हैं हमारे गांव से। स्कॉलरशिप्स मिलने के बाद हमारे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं। वो उन्हें देखकर उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में उन्हें भी ऐसे स्कॉलरशिप्स मिल सके और उनके जो सपने हैं वो उन्हें पूरे कर पाएं। ऐसे बोला जाता है कि भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन से ही सब कुछ मिलता है, ये सच कर दिखाया है हमारी लड़कियों ने। मेरे फैमिली के पास, मेरे पेरेंट्स के पास कोई किसी प्रकार का जॉब नहीं था, क्योंकि लेप्रोसी मेरे फैमिली थे, उसके अनुसार कहीं भी जॉब नहीं मिलता था। लेकिन रक्सौल में एक सुंदरपुर लेप्रोसी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उनको सूत काटने का जो चरखा चलता है, वहाँ पे सूत काटने का उनको जॉब मिला, और उसी काम से जो पैसा 1500-1000 जो मिलता था उससे हमारा फैमिली चलता था। मुझे स्कॉलरशिप 2015 में मिला, और मेरा कोर्स BSc नर्सिंग मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ 2019 में। आगे का मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं ऐसे रजिस्ट्रार बनने के लिए, और मैं उसके लिए मैं बहुत कोशिश में लगी हूँ। आगे मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। जब से मुझे इस पोस्ट पे मुझे ये जॉब मिला है, उसके बाद से मेरा आर्थिक स्थिति बहुत सुधर चुका है। घर द्वार जो है बना रही है, तो ईश्वर का ये धन्यवाद है। तो मैं कॉलोनीज में जाती हूँ, मंथ में एक बार हेल्थ कैंप लगाती हूँ। जो भी पेशेंट, क्योंकि लेप्रोसी पेशेंट जो है वो नहीं जा पाते हैं, तो लगाते हैं। उससे बहुत सारे मरीजों को उसमें भी है लाभ मिलता है। मेडिसिन उन लोग को देते हैं, उन लोग का ट्रीटमेंट करते हैं। जब मैं यहाँ पे आई, जब मैं यहाँ पे पेशेंट को देखना शुरू की, टीबी से पीड़ित थे, प्लस BP वाले पेशेंट थे, चीनी शुगर वाले पेशेंट यहाँ पे ज़्यादा थे। तो इस लोग के कंडीशन के अनुसार इन लोग का चेकअप करके मैंने उन लोग को मेडिसिन अभी कंटिन्यू जारी कर रही हूँ। अभी मैं एज अ स्टाफ नर्स करके सिनर्जी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिनर्जी 1 ईयर मेरे घर के पास ही है। उधर मेरे 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं।
12th साइन के बाद मुझे पता चला, मैं नर्सिंग करने वाली थी, तो मुझे ससाकावा इंडिया लेप्रेसी फाउंडेशन के बारे में पता था बिकॉज मेरे मॉम डैड दोनों भी लेप्रेसी थे। और फिर मेगा दी जो मेरी सीनियर है उसको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो उसने मुझे काउंसलिंग किया था कि ये फाउंडेशन है तो फिर तू फॉर्म वगैरह भर। Near technician, supervisor. Next chapter आपला staff म्हणजे I have completed my BSc Nursing in 2015 in Bharati Vidyapeeth Deemed University College of Nursing, Sangli. 3 years I'm working in CCU department, same Bharati Vidyapeeth. And after that, since 6 years, I'm working as a nurse in charge in Param Shetty Hospital, as well as in Bhagini Nivedita Pratishthan as a principal. We are staying in leprosy colony, so you have to give care to the needy people. And then I'm thinking of the fees because at that time fee was 40,000. It is too much for us. And finally I got the scholarship and I reduced almost 4 years of tension. स्कॉलरशिप से हमें काफ़ी सहायता मिली है, नहीं तो बच्चों को हम पढ़ा नहीं पाते। मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ सासाकावा इंडिया लेप्रेसी फाउंडेशन को इस स्कॉलरशिप के लिए। हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, दिन के 110-120 आ जाते हैं, उतने पैसे कहाँ हैं। इस स्कॉलरशिप से बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लाइफ में तो बहुत अच्छे चेंजेस हुए जब से स्कॉलरशिप भी मिला है, जब से जॉब कर रही हूँ। मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग चेंजेस आई हैव सीन इन माय लाइफ। मैंने घर पे बहुत सारा हेल्प किया है लोन क्लियर करने के लिए बिकॉज वी 3 आर लर्निंग। आई हैव 2 younger brothers and me. And also me and my fiance built one house and that is 3 BHK. After education, after job, I have done one more additional education that is MBA in healthcare management and I'm working as an ABH coordinator in Sevamangal Hospital. 2016 में मैं रोशनी के साथ जापान गई थी सोशल स्टिग्मा ऑन लेप्रेसी ए टॉपिक पे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस था, तो रोशनी को मौका मिला था कि वो टॉपिक पे बात करने के लिए। अभी भी जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, अभी भी ये नहीं बता रहे हैं कि हम लेप्रेसी कॉलोनी से आए हैं, तो ये सबसे बड़ा स्टिग्मा है। तो इसके लिए बहुत सारा अभी भी काम करना बाकी है। तो बहुत अवेयरनेस हो रहा है लेकिन स्लोली हो रहा है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस स्टिग्मा कम करने का एजुकेशन एक मात्र है। सासाकावा इंडिया लेप्रेसी फाउंडेशन और आपाल यानी एसोसिएशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रेसी, ये दोनों संस्था एक साथ काम करती है। आपाल का काम है ग्रासरूट लेवल में काम करना। ग्रासरूट लेवल के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो एजुकेशन के हैं, बाकी सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन एजुकेशन में अवेयरनेस करना, उनको माता पिता को बताना कि क्या प्रोग्राम है, उसके बारे में सूचना देना। और जो कॉलोनी लीडर है वो उसको ये करते हैं कि ये कॉलोनी में रहता है, ये एक उसका साइन लगता है। तो इस तरह से आपाल का जो कॉलोनी आपाल से रजिस्ट्रेशन है उसी में ये प्रोग्राम हमने शुरू कर, यही आपाल का रोल। Good afternoon, students. Sit down. I did my undergraduate and postgraduate in Dr. Mahalingam College of Nursing in UG Sasakawa India Leprosy Foundation. Scholarship is so helpful for me, and there is a lot of opportunities in the nursing field. I am now married, but my husband and their family has no non-leprosy background, but they accepted me, and there is no problem in life. I am now happily living my life. Here SILF students are doing very good and they are doing excellent performance in all the activities. Though they are coming from the poor family, but they are good in all the things. Thank you so much, Sasakawa India Leprosy Foundation. We want to educate and motivate the next generation to get each and every opportunity by the Sasakawa India Leprosy Foundation. I think there is no prince and princess. You are only the prince and princess of your life, and nobody going to give you inner happiness until you will try to change by yourself. तो थैंक यू सो मच ससाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन। अगर वो मुझे स्कॉलरशिप नहीं दिए होते तो शायद आज मैं एक कॉमन सा पढ़ाई करके कहीं पे होती, चाहे मेरा शादी हो गया रहता, चाहे कहीं भी कुछ नहीं कर पाती। मैं ससाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ बिकॉज उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा एक चेंज किया है।
जिसके वजह से मैं आज मेरे पैरों पे खड़ी हूँ. And also I am giving treatment modalities to the all needy people. And if they want any help from me, I am 24/7 I am available for them. माया तुझी आमावरी राहू दे. ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे. माया तुझी आमावरी राहू दे. लक्ष्मीच्या हातातली चौरी व्हावी वर खाली. लक्ष्मीच्या हातातली चौरी व्हावी वर खाली. कृपा तुझी बात्यामध्ये सुरा संग राहू दे.